Hello everyone, welcome on my YouTube channel Let's Play with Maths, and I am Vandana Prajapati teaching you class 8 chapter number 9, that is algebraic expression and identities. This is the basic intro of algebraic expressions. In this intro I introduce about like terms, unlike terms, and addition of algebraic expression and subtraction of expressions. First of all, we have to know about that what is a algebraic expression. हमको सबसे पहले ये पता करना है कि algebraic expression क्या होता है. उसके लिए हम समझते हैं छोटी छोटी चीजें. That is variable. What is a variable? Variable means changeable. जो चीज बदलती रहती है उसको हम variable कहते हैं. In mathematics there are alphabets like A, B, C, X, Y, Z, etc. These are known as variable. इनको हम variables बोलते हैं क्योंकि आपने देखा होगा इन अर्लियर क्लासेस X, Y, Z की वैल्यू आपने डिफरेंट फाइंड की होगी. यानी कभी X की वैल्यू आपकी 2 आई होगी, कभी आपने 3 फाइंड की होगी. सो these are known as variable. इनको हम variable कहते हैं. Now constant. What is a constant? Constant means non changeable. जो बदलता नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं. एग्जांपल देखिए, नंबर्स जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, दैट इज 1 2 3 टू इंफिनिटी, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स. नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशन. इन मैथ्स देयर आर 4 ऑपरेशंस, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड. These operations if we do in this variable and constant, अगर हम variable और constant को operate करते हैं इन सब से, then we will get an algebraic expression. How? देखिए, हम इस तरीके से x को add करते हैं 3 में. x जब add होता है 3 में तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है x plus 3. इसे हम कहते हैं algebraic expression. Now more example. y minus 4. If we multiply 5 multiply y written as 5y, हम इसको इस तरीके से 5y लिखते हैं. एंड इफ वी डिवाइड, अगर हम डिवाइड करें देन z अपॉन 4. मोर एग्जांपल, 7x plus 5. हियर 7x मीन्स 7 को प्रोडक्ट किया गया है x से और फिर उसमें 5 ऐड किया गया है. नाउ 3x square. 3x square 3 multiply with x multiply x. Cos x square is equal to x multiply x. Now 2xy plus 9. Here 2 multiply with x multiply with y and add by 9. Next is yz. Yz means 1 multiply y multiply z. These are all algebraic expressions. Now next topic is terms, factors and coefficient. One example is 7x plus 5. Now how many terms? Terms means how many terms in this? There are 2 terms. How many terms? 2 terms. First is 7x. 7x and addition is operation, and second term is 5. Now it contains 2 terms. It means हमारे पास जो algebraic expression है इसमें केवल 2 terms है, जिसमें से पहली जो है वो 7x है, एडिशन वाला हमारे पास ऑपरेशन है, और 5 हमारे पास सेकेंड टर्म है. तो हम इसमें किसी भी algebraic expression में हम terms को काउंट कर सकते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, 2xy plus 3x plus 2. How many terms in this example? There are 3 terms. First is 2xy, second is 3x, and third is 2. Now factors. If we factorize any term, now let's 7x. We factorize this. 7 is a prime number, so 7 is numerical and the variable is x. 7 multiplied by x. So the factors of 7x will be 7 multiplied by x. One more, 2xy. If we factorize this 2xy, अगर हम इस 2xy के फैक्टर करेंगे, then we have to get 3 terms, that is
मल्टीप्लाई विथ एक्स मल्टीप्लाई विथ वाई। मतलब हमें इसमें 3 टर्म्स मिलेगी। 2 को हमको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, देन 2 वेरिएबल, फर्स्ट इज एक्स एंड सेकेंड इज वाई, एंड थर्ड इज कोफिशिएंट। व्हाट इज अ कोफिशिएंट? तो हमें फैक्टराइज करने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। व्हाट इज अ कोफिशिएंट? इफ वी look at this term, then the 7 is a coefficient of x. Now in this 2x1, so 2 multiply by x multiply by y, so 2 is a coefficient and these are variable. So if we take coefficient of x, तो जो रिमेनिंग टर्म है जो बचे हुए हैं वो पूरे इसके कोफिशिएंट्स होंगे। मतलब ऐसा कोफिशिएंट लेने के लिए जो रिमेनिंग वेरिएबल और कांस्टेंट बचे हुए हैं वो दोनों हमको लेने पड़ते हैं। तो नाउ क्लियर टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। नाउ मोर एग्जांपल्स, दैट इज 2x containing 1 term। मतलब हमारी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें 1 term है। इन दिस देयर आर 2 terms and in this there are 3 terms. So this contains only 1 term, so it has a specific name, इसका special name है, that is monomial. What is monomial? Next, अगर किसी भी algebraic expression में 2 terms contain होती है, then it is called binomial. What is binomial? Next, if algebraic expression, अगर algebraic expression में 3 terms होती है तो इसका नाम होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। नाउ all these are called polynomial. क्यों? क्योंकि जिसमें 3 से ज्यादा टर्म होती है तो उनका नेम होता है polynomials. So अगर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म होती है, सेकंड 2 टर्म्स होती है या फिर 3 टर्म्स होती है तो उनके नेम होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। देन ऑल दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल मीन्स अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 1 और मोर टर्म्स कंटेन करता है वेरिएबल्स के साथ विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट, इट मीन्स अगर आप यहाँ देखिए 2 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 5 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, x का 2 है। सो नॉन जीरो मीन्स x के साथ कभी भी जीरो कोफिशिएंट नहीं ले सकते, क्योंकि इफ वी प्रोडक्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाई विद x इट विल बी जीरो। तो जीरो इज नॉट अ algebraic expression, so we should take coefficient as non-zero. The next topic is like terms and unlike terms. Like term क्या होते हैं और unlike term क्या होते हैं? Like term means same terms, जिनमें same variable होगा उनको हम कहेंगे like terms, and जिनमें different variable होगा, different means अलग, तो जिनमें different variable होगा उनको हम कहेंगे unlike terms. Like example 7x minus 13x. So these have x as variable and it has also x variable. So these are like terms. यानी ये दोनों सेम टर्म्स हैं। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे 3x स्क्वायर और सेकेंड इज 2y स्क्वायर। हियर एज अ वेरिएबल हियर x स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल में x स्क्वायर है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ वेरिएबल में y स्क्वायर है। दीज आर नॉट सेम, ये दोनों डिफरेंट है। सो दीज आर अनलाइक टर्म। सो अनलाइक टर्म और सेम टर्म्स को पढ़ने का क्या उद्देश्य है? अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं या फिर सबट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो सेम यानी लाइक टर्म्स है वो ही ऐड हो सकती है और वो ही सबट्रैक्ट हो सकती है। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड सबट्रैक्ट नहीं होती है। अगर मान लो मैं इनको ऐड करती भी हूँ तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। और अगर मान लो मैं इन दोनों को करती हूँ देन माइनस 30x, तो 7 में से 13 जा नहीं सकता तो 13 में से 7 दैट इज 6x एंड ग्रेटर नंबर इज माइनस। सो पुट माइनस हियर। The same like terms will be subtract and unlike terms not be
subtract or add it. Now next topic is addition of algebraic expression. That this is example 7x square minus 4x plus 5. इसको आपको इसमें ऐड करना है 9x minus 10. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एडिशन फॉर्म में लिखते हैं. एडिशन फॉर्म में लिखने के लिए जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख देना है like this. Okay. Now we have to add this 9x minus 10. तो जब हम इसको इसके नीचे लिख रहे होंगे तो हमको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है. तो जैसे यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल वाली टर्म है तो हम इसको x वेरिएबल वाली टर्म के नीचे लिखेंगे. तो हियर x टर्म वाली टर्म ये है तो हमने इसके नीचे लिख दिया. और नेक्स्ट कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के नीचे लिख देते हैं. यहाँ पे जगह खाली है तो यहाँ पे हम ऐड करके 0 लिख देते हैं. We have to both terms add. So now the sign rules. Sign rules क्या होते हैं, आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा. I repeat once more. अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं देन आंसर भी ऐड होता है. एंड अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स लेते हैं तो वो भी ऐड ही होते हैं. और अगर हम दो अपोजिट साइंस वाले नंबर्स लेते हैं देन इट विल बी सबट्रैक्ट. अब आंसर में कौन सा साइन आएगा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आंसर में हमेशा जो भी साइन है वो किसका होता है, ग्रेटर नंबर का. जो भी हमारे पास ग्रेटर नंबर है उसी का हम साइन यूज करते हैं. लेट्स सी हियर 5 और 10. तो पॉजिटिव 5 में आपको नेगेटिव 10 को ऐड करना है. हियर द साइंस आर अपोजिट, यानी यहाँ पे साइन अलग अलग है और अलग अलग साइंस क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं. तो हम क्या करेंगे, 10 में से 5 सबट्रैक्ट कर देते हैं. आंसर इज 5. नाउ आंसर का साइन कैसा होगा, आंसर का साइन हम चेक करेंगे ग्रेटर नंबर से. तो 5 और 10 में से ग्रेटर 10 होता है. सो वी विल यूज माइनस. तो आंसर विल -5. नेक्स्ट हियर -4x प्लस 9x माइनस के 4x प्लस 9x. तो हम देख लें कि यहाँ पर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो दोनों क्या होंगे, सबट्रैक्ट. तो वी विल सबट्रैक्ट. 9 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 5x. अब हम आंसर का साइन चेक करते हैं. आंसर का साइन कौन सा आता है, ग्रेटर नंबर. तो ग्रेटर नंबर इज 9. तो वी विल टेक पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव 5x. और हम हमें 7x स्क्वायर में 0 ऐड करना है. तो 7x स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 7x स्क्वायर. नाउ एडिशन कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे हमने एडिशन किया था कुछ इस तरीके से ही हम सबट्रैक्शन करेंगे. तो हम पहले फर्स्ट टर्म को ऐसे कैसे लिख देते हैं, एज इट इज. उसके बाद में हमको सेकंड टर्म लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी. जो लाइक टर्म्स है उनके नीचे लाइक टर्म्स लिख देते हैं. तो हियर yz वाली टर्म ये है तो इसके नीचे हम ये वाली टर्म लिख देते हैं. उसके बाद में zx वाली टर्म है तो zx के नीचे zx वाली टर्म लिख देते हैं. रिमेनिंग इज -4y. आइदर आप यहाँ पे लिख लें आइदर आप इधर लिख लें. थोड़ा सा इधर 0 पुट करना पड़ेगा. इसके पास इधर लिखने के लिए आपको 0 ऐड करना पड़ेगा. ओके. नाउ वी हैव टू सबट्रैक्ट. अब हमें इस पूरे को सबट्रैक्ट करना है. सबट्रैक्ट करने का मतलब पहले हम इस पूरी टर्म को सबट्रैक्शन से यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. और मल्टीप्लाई का रूल भी कुछ इस तरीके से है. जब आप नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव. अगर आप डिफरेंट साइन वाले यानी अपोजिट साइड को करते हैं, साइंस को करते हैं देन इट विल बी नेगेटिव. सो जो पॉजिटिव नंबर्स है वो नेगेटिव बन जाते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स है वो पॉजिटिव बन जाते हैं. सो दिस इज -4y. इट विल बी पॉजिटिव. नाउ 0 पॉजिटिव है तो ये सबट्रैक्शन हो जाएगा इसका. नाउ हियर नेगेटिव, हियर आल्सो नेगेटिव. अब हम टोटली एडिशन का जैसे ही रूल फॉलो करेंगे. -3 -9 बोथ आर सेम साइन. सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है. तो
तो हम इनको ऐड कर देते हैं 12 और आंसर में साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर नंबर 9 है तो 9 का साइन ले लेंगे माइनस का 12, जेड एडिटिव लिख देंगे माइनस का 12 जेड एफ। व्हाट इज नेक्स्ट इज positive 5 and negative 4, positive 5 और negative 4. Now positive 5 and negative 4 are opposite, so we have to subtract. हमें subtract करना पड़ेगा, 5 में से 4 subtract करेंगे 1 और greater number 5 है, so it will be positive. So positive 1 y z. Maybe you can write 1 और remove this. आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो ये भी 1 ही रहेगा. Earlier I told you that 1 into y into z. So हम यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी ये 1 से मल्टीप्लाई रहेगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. सो 7xy प्लस की जगह हमने माइनस कर दिया है, तो माइनस 0 भी करने से कोई इफेक्ट नहीं होता. सो 7xy. और हमने देखा था जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया था तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया था, तो 4y पॉजिटिव आ गया. दिस इज द सब्ट्रैक्शन. Now in the next video we will be studying exercise 9.1. This completes our introduction of algebraic expression.